morning and namaste. Today we are here for the awareness program on intellectual property right under the initiative of NIPAM. Before starting the session, I would like to honor the respective Honorable Vice Chancellor Sir, Major General G.K. Thapliyal, respected Pro Vice Chancellor Sir, Dr. Abhay Shankar Devgowda, our today's guest, Ms. Chavi Garg, and all the respected deans, HOIs, HODs, all respected faculty members, my dear scholars and students. I, Dr. Neetu Pamar, IQAC Director, welcome you all in today's awareness program on intellectual property rights to celebrate NIPAM, jointly being organized by IQAC, Faculty of Law and Central Research Incubation Cell. Now, I would like to call upon all the respected dignitaries to come up on the stage for lamp lighting. Deva
request Honorable Vice Chancellor Sir to welcome our today's guest, Ms. Chhavi Garg, Examiner of Patent and Design, by giving planter, which is an integral part of Subharti culture. In the series, now, I would like to welcome our Honorable Vice Chancellor Sir to please come on the stage and do the official opening of today's program. Thank you, Dr. Neetu. Jai Hind and very good morning to you all. I'm glad to see a good audience and students sitting here. Dear Dr. Chhavi, Madam Chhavi Garg, आज की इस सेमिनार के और इस लेक्चर की प्रमुख वक्ता जो हमारे बीच हैं और हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स, सारे स्टूडेंट्स, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस हॉल में. As you know, this program is being organized under the scheme, that's a National Intellectual Property Right Awareness Program, NIPAM. ये एक नेशनल प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम का मकसद है इंडिया को, जो हम बार बार हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते रहते हैं कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए हमें कैसे बनना है, वो बन सकते हैं हम बेस्ड ऑन नॉलेज के बदौलत हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं. और नॉलेज में हमारा जो चीज़ें हैं वो होती है सबसे बड़ी चीज़ रिसर्च के थ्रू हम एक सेल्फ रिलायंट, हमारा गोल है कि हम कंट्री को सेल्फ रिलायंस की तरफ ले जाएं. हमारी कितनी भी जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसका असर बिकॉज ऑफ दिस आजकल जो वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर, उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं आप कि जो भी कंट्री बाहर से इंपोर्ट कर रही है वो उनकी इकोनॉमी बहुत डाउन है, ऑलमोस्ट वेरी बॉटम लेवल पे आ चुकी है. आप वेस्ट की देखिए या यूएसए की इकोनॉमी देखिए या आप यूरोप की इकोनॉमी देखिए, इन कंपैरिजन टू द इंडियन इकोनॉमी they have gone very low and Indian economy is still sustaining. Reason is that we don't import so much from other countries. And हमारा एक ही emphasis होगा कि हम अपनी कंट्री में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो वो खुद ही हम प्रोड्यूस करें. उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी होगा कि यंग माइंड को हम एक सेंसिटाइज करें, उनको एजुकेट करें और उनके अंदर की एक capability to innovate or to discover or to create something, उनको sensitize करने के लिए ये एक प्रोग्राम्स किया जाए, बेसिक एम. अब उस एम के पीछे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको मैडम डिटेल में बताएंगे कि व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. थोड़ा सा ब्रीफ में आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट, लाइक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी यू कैन अंडरस्टैंड. वन इज द प्रॉपर्टी लाइक you have a land, you have money, you have jewelry, you have so many things, you have your own laptop, you have other things. So these are your physical properties. But for the physical property we have rights. Like for land, you register your land and that becomes your property right. That property is protected through law. Similarly, when you have your own creation, intellectual means the creation of the mind. Whatever you create, that becomes your property. But that property, if it is not used by others for the economic reasons, for any other reasons, how you protect that property? So some legal or some laws should be there to protect that. So there are laws, you have the rights to protect your, and this intellectual product can be in the form of like your invention. You have created something new, that is invention. This can be in the form of something you have designed, that is your own. You have designed, nobody had designed it before. Other is something you have written, maybe some different thing you have created.
some books you have written, that also becomes your own. So under these various things, there are various rights you have, and then the various laws are there. You have a patent law. Patent law means that will protect your intellectual property which you have invented or which you have created. There will be a trademark. There will be a copyrights. There will be geographical, what is GI, no? Geographical, what is that called? I for? So geographical, like जयपुर की या बीकानेरी भुजिया या कोलकाता का रसगुल्ला या कोई भी चीज़, मेरठ की कैंची, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, जीआई। तो इनको कैसे करते हैं वो शायद मैडम डिटेल में बताएंगे, मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता। बट ये सब चीज़ें हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट व्हाट एवर यू हैव क्रिएटेड थ्रू योर माइंड। सो एक all those who are innovators here and those who actually create something, then you should keep that your creation secret till the time you get that protected. If you expose or say something to others that I have done this, to means it is not protected and you have exposed it, you have told the other people before it got protected through law. So आपको एक चाणक्य की कहावत याद होगी, उन्होंने कहा था कि आपको अपना सीक्रेट, जो आदमी अपना सीक्रेट जितनी देर तक और जितनी अच्छी तरह से संजो के रखता है वो उतना ही सक्सेसफुल होता है। तो इसमें भी यही है, कुछ आप क्रिएट करें, कुछ आप बनाएं, या आप एक पोइट्री भी बनाएं, या आप कुछ स्लोगन लिखें, या आप कोई डिज़ाइन करें, कोई पिक्चर बनाएं, कुछ ट्रेडमार्क बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं आपके दिमाग में, उसको तब तक दूसरों को न बताएं जब तक आपको उसको प्रॉपर्टी राइट्स ना ले लें। और एक बार आपको राइट्स मिल गया तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई, कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी तरह से। तो ये बेसिक फंडामेंटल है जो कि जिस पे कि मैडम विल डिस्कस इन डिटेल। एंड मेरा एक और है, आप सब लोग एक इंटरैक्टिव बनाएं। मैडम खाली लेक्चर दे के नहीं करेंगे, मैडम प्रॉब्ली विल आस्क क्वेश्चंस। और मेरी आप लोगों से ये वो दरख्वास्त है कि जिसके भी दिमाग में जिस तरह की थोड़ी सी भी एक क्वेरी आ रही हो, एक इंक्विजिटिवनेस आ रही हो, एवरीबडी शुड आस्क क्वेश्चंस कि मैडम ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, ये ज़रूर पूछिएगा। उससे पता लगेगा कि आप लोग समझ रहे हैं और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, और समझने के बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ज़रूर पूछिएगा। ये एक इंटरैक्टिव सेशन है, ये कोई ऐसा नहीं कि वो मैडम आएंगी और 15-20 मिनट और 40 मिनट और 1 घंटा बोलेंगी और आप लोग सब सुन के चले जाएंगे। नो, एक इंटरैक्टिव है। आप बीच में पूछिए मैडम से, जितना भी आपको क्वेश्चन पूछना चाहें वो पूछिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम से कि वो उनको पूरा जवाब देंगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Before welcoming our today's guest, I would like to give a brief about the IPRs of the university. The presentation which you have just behind me on the screen, kindly ignore the pending status. I would like to mention it that in filed, the number which is being mentioned is out of the total patents which university filed still remain in filing process, not published or granted. So I know some calculation is there in your mind that how this number is being reflected here. So if we see the total number of patents filed by the university, 60 plus 77, this is the total, out of which 60 is still under filing process and 77 already been published or granted. So this is the brief about the university IPR. Now I would like to welcome our today's guest, Ms. Chavi Garg. She is patent examiner at Controller, Journal of Patents, Designs, Trademarks, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, New Delhi. She is having 4 years of experience in this field. Now I request our guest, Ms. Chavi Garg, to please come on the stage and for the today's session. Good morning, everyone. Why I asked for this mic was because I want to have this as an interactive session with you all.
Okay, so as told, I am Chavi Garg. I'm a Group A Gazetted Officer with Ministry of Commerce and Industry at present, posted in Delhi. And today, I have come to Subhati University. The primary objective is to give you all awareness about what is intellectual property. And the second objective is that I would like to know what are the issues faced by you in filing of intellectual property. Because as I see here, there are a lot of intellectual property already filed by Subharti University. So I like to know why more intellectual properties are not getting filed. Is there some issue faced? Or just that you guys are not thinking about it? Okay, so beginning with the presentation, the pattern that I would follow is, it would be an interactive session. I'll not take much of your time, but like 40-45 minutes, and I want you all to talk to me, okay? And then post the session, we'll have a question-answer round. Last time when I was in Subharti, a lot of brilliant questions were asked, and I hope that culture continues. Okay, so as sir told, intellectual property क्या है? Property आप सबको पता है, घर, जमीन, गाड़ी को प्रॉपर्टी बोलते हैं. इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है? 25 इयर्स के अगर आप हो गए हो तो शादी कर लो, पहले घर खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, तो आप लाइफ में सेटल्ड बुलाते हैं. यही कॉन्सेप्ट है. पेरेंट्स हमारे यही चाहते हैं हमसे. बट 10 years down the line, 10 years from today, this concept is going to be changed. Concept होगा नया. If you have an intellectual property in your name, you are going to get called, settled in life. Why? Going with the presentation, जैसे कि जब प्रॉपर्टी के आगे एक वर्ड ऐड हो गया इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक संपदा, मतलब कि दिमाग का यूज करके आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. आपकी जमीन कोई आपसे छीन सकता है, बट आपका दिमाग आपसे कोई नहीं छीन सकता. आपने अपने दिमाग का यूज करके कोई सामान बनाया, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. जैसे जो मैंने अपना कमेंट एक दिया कि 10 years डाउन द लाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहाँ स्टैंड करेगी. राइट नाउ इफ यू ट्राई टू मेक योर करियर इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट इज वेरी इजी. यू विल फेस वेरी लेस कॉम्पिटिशन, बिकॉज अभी ये मार्केट में नया है. इट इज अ बूमिंग फील्ड. बट 10 years बाद अगर आप इसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे, यू विल फेस लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. व्हाई आई से दैट, वील गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. एक प्रोडक्ट, लैपटॉप के बारे में डिस्कस करते हैं. लैपटॉप के अंदर 5 अलग तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. एंड लैपटॉप का क्या इंपॉर्टेंस है आज की डेट में, यू ऑल नो अबाउट इट. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस इसी से क्लियर हो जाता है. when I type something on the keyboard, it is visible on the LCD screen of the computer. That is the technical invention that we call as patent. Okay? Patent is the first type of intellectual property. Secondly, अब ये बताओ, HP का लैपटॉप एप्पल के लैपटॉप से अलग दिखता है? Yes? Why? What is the difference? Anyone? The logo. Perfect. Sir has told perfectly that HP के लैपटॉप एक लोगो होता है HP करके, एक सर्कल के अंदर, सॉर्ट ऑफ ओवल के अंदर HP लिखा रहता है. एप्पल का ब्रोकन एप्पल. When I say a broken apple, आप ये तो नहीं बोलोगे ना ये एप्पल है, आप बोलोगे एप्पल का लोगो है. That is what is a trademark intellectual property. Okay? The second difference, लैपटॉप के बीच में, एप्पल का लैपटॉप has a more slimmer look than the HP laptop. That is what we call as the design intellectual property. कि प्रोडक्ट का डिजाइन क्या है, what is the aesthetic appearance of that product is what is called as a design intellectual property. Fourthly,
अगर आप में से किसी ने आई डोंट नो, मोबाइल फोन्स आज वाले तो खुल नहीं पाते, पहले जो फोन आते थे वो खोल के देख सकते हैं पीछे से। मदरबोर्ड किसी ने देखा है लैपटॉप का? Anyone has seen? Yes, perfect. So what did you see in the motherboard? ICs. That is absolutely correct. So the way ICs are presented, the layout of those ICs is what is called semiconductors, integrated circuit layout design. It is a type of intellectual property. Okay? आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ एक मैनुअल मिलती है? Have you seen? उसमें सी करके लिखा रहता है कॉपीराइट। एग्जैक्टली, दैट इज द कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आप ये सोचिए, एक 50,000 के लैपटॉप में इतनी डिफरेंट टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं। एंड लैपटॉप इज द बेसिक ऑफ लाइफ, बेसिक नेसेसिटी में माना जाएगा फ्यू ईयर्स में लैपटॉप। सो try to imagine that growth intellectual property ki where do you see, and if you are able to visualize, I'm sure by the end of the session you'll think कि आपको इस field में कैसे entry करनी है। Okay, moving on to the next slide. Now what we will do is, ये जो हमने discuss किए 5-6 अलग अलग intellectual properties, इनके बारे में brief में जानेंगे कि ये होते क्या हैं। Okay, the first one is patents. Next slide. Okay, next one. Yeah, have you all seen this? क्रिकेट फैंस कितने हैं? सभी होंगे? नहीं, टाइम नहीं मिलता। ओके, आपकी कोई क्रिकेट की टीम है यहाँ पे सुभारती में? यस, ओके। सो जो टीम के मेंबर्स है वो आंसर करेंगे, व्हाट आर दीज? एलईडी बेल्स। एलईडी लाइट जो हम दिवाली में घर पे लगाते हैं, उसको बेल्स के अंदर अटैच किया और ऐसा एल्गोरिदम लिखा कि जब भी ये बेल्स स्टंप से ऊपर उठेंगी 1/1000 सेकेंड में, these will turn red color, showcasing that the player is out. पहले क्या होता था? थर्ड एम्पायर बताता था whether the cricketer is out or not. काफी partiality होती थी, but now it has been reduced because of this invention. ये invention ऑस्ट्रेलिया के एक इंसान ने किया है। We need to ask ourselves this question, that India being a nation that plays cricket in every street, why this invention did not come from India? Hi-fi invention नहीं है। LED लाइट को बेल्स में कनेक्ट किया गया है, इंटरडिपेंडेंट बनाया गया है, एल्गोरिदम लिखा है कि जब ये स्टंप से ऊपर उठेगी तो फिर जब कोई भी पार्ट उसका टच नहीं करेगा स्टंप से, तब ये लाइट जनरेट करेगी। सो व्हाई दिस इन्वेंशन वाज नॉट डन इन इंडिया? ओके, एंड whenever ICC uses these LED bells क्रिकेट में, इंडिया में जो मैचेस होते हैं, ICC ने उस ऑस्ट्रेलिया पर्सन से इसको खरीदा है रॉयल्टी के पैसे देकर। सो इमेजिन अगर आप में से यहाँ बैठे किसी ने ऐसा इन्वेंशन किया होता, यू वुड हैव अर्न्ड लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। दिस इज व्हाट इज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, सो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। I've tried to, to connect with you all, portray this example because it's simpler to understand. Next slide. अगर हम थ्योरी की बात करें कि भाई पेटेंट क्या होता है, so patent is given to a product or a process. Product you all understand? Something that is tangible. Okay? Process is a method to make that product or any other product. Supposingly अगर आपने क्लोथिंग की इंडस्ट्री डाली जिसमें फास्टर क्लोथ बन रहा है, उस प्रोसेस को आप पेटेंट करवा सकते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है दैट पेटेंट इज गिवन ओनली टू अ प्रोडक्ट, बट इट कैन बी गिवन टू अ प्रोसेस ऑल्सो। मेडिसिन बनाने की कोई आपकी प्रोसेस है, उस पर आप पेटेंट ले सकते हैं। सेकेंडली, पेटेंट is a territorial right, meaning
नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ. मीनिंग ये है, अगर आपने पेटेंट के लिए इंडिया में फाइल किया है, इट इज प्रोटेक्टेड ओनली विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया. यूएस में अगर आपको अपना पेटेंट प्रोटेक्ट करना है, यू हैव टू फाइल अ सेपरेट एप्लीकेशन इन यूएस. ओके. पेटेंट इज गिवन फॉर 20 years. व्हाई 20 years? बिकॉज इट इज एज्यूम्ड दैट जो आपने हार्डवर्क करके पेटेंट बनाया है, 20 साल के अंदर आपने उससे प्रॉफिट कमा लिया होगा. ओके. आफ्टर 20 years इट बिकम्स पब्लिक नॉलेज. व्हाई? बिकॉज वो नॉलेज को बेसिस बना के कोई और इन्वेंशन कर सकता है. ओके. गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि जो पेटेंट मैंने कहा इट कैन बी गिवन टू अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस, उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो मिले. पहला पॉइंट, इट शुड बी नॉवेल. नॉवेल आप लोग सब समझते हैं, नया. सम फीचर शुड बी न्यू, जैसे एलईडी बेल्स थे, अभी तक वो नहीं थे मार्केट में. थर्ड एम्पायर पे वी वर रिलाइंग कंप्लीटली, उसको ऑटोमेट कर दिया, नया फीचर ला दिया, एलईडी बेल्स. सेकेंडली, इट शुड हैव एन इन्वेंटिव स्टेप. इन्वेंटिव स्टेप से क्या मतलब है? एग्जाम्पल लेती हूं. मैंने एक एप्लीकेशन बनाई जो मेरे नियर बाय कैब्स को मेरे से मैप करेगा, एंड आई एम यूजिंग जीपीएस टेक्नोलॉजी. ओके. बट this is already being done by Ola and Uber. I have not done any technical invention in this. But if I make an application that uses something that is more efficient than GPS, something that is more efficient than Ola and Uber, what they're using, then that would qualify the heading of inventive step. Thirdly, the most important, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी. यानी कि जैसे एलईडी बेल थी, एलईडी बेल्स का क्रिकेट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज है, मेडिसिन्स का फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज है. सो दे क्वालिफाई द क्राइटेरिया ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी. ओके. नेक्स्ट स्लाइड. कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये पहली फोटोग्राफ, व्हाट इज इट? कोई भी बताओ. अ बेबी हैट. किसी ने ये प्रॉब्लम सोची कि बच्चों की आंख में शैम्पू चला जाता है, तो ये बना दिया. इंडिया में हम इसको क्या बोलते हैं? जुगाड़. दैट इज व्हाट वी कॉल इट. सो दिस इज व्हाट यू नो, जुगाड़. अगर उसमें कोई टेक्निकल सोल्यूशन है, इट कैन बी पेटेंटेड. जरूरी नहीं है कि आप लेबोरेटरी में जाकर एक्सपेरिमेंट करके पेटेंट बनाएं. पेटेंट कैन बी गिवन फॉर जनरल थिंग्स. दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि पेटेंट बहुत हाई फाई होता है. पेटेंट बनाने के लिए हमें ड्रोन बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना पड़ेगा, फार्मा के बारे में जानना पड़ेगा. बट अगर आप डेफिनेटली उन फील्ड्स में भी पेटेंट मिलता है, बट सिंपल चीजों के बारे में भी पेटेंट मिलता है. ओके. इट कैन बी कॉम्प्लेक्स थिंग्स लाइक इन फ्यूचर लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है कि फोन रखने की जगह नहीं है, पर्स कैरी करना पड़ता है. इन फ्यूचर ऐसे मोबाइल फोन आएंगे, यू कैन ऑपरेट ऑन योर रिस्ट, नो नीड टू कैरी अ डिवाइस. सो दिस इज व्हाट इज द फ्यूचर. You can make a drone, that is a patented thing. You can get a patent on it. Okay. कोई efficient drone बनाइए जिसका बैटरी existing drone से better है, या जो ज़्यादा high fly कर सकता है. So these things you can get patent on. Next slide. Okay. पहली photograph. Yet again a simple example. Hangers. हम अपने कबर्ड में रोज हैंगर यूज करते हैं. किसी ने ये प्रॉब्लम सोची होगी, मेरे कबर्ड में स्पेस नहीं है, मेरे कपड़ों का आयरन खराब हो जाता है. सो दैट पर्सन वेंट अहेड एंड इन्वेंटेड हैंगर्स. तो ट्राई टू फाइंड अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ फॉर विच अ टेक्निकल सोल्यूशन इज पॉसिबल, एंड वंस यू डू दैट यू कैन गो अहेड एंड फाइल फॉर द पेटेंट्स. Okay, why I am emphasizing again and again on finding a problem,
बिकॉज लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम पेटेंट किसको कैसे सोचे कि आइडिया ही नहीं आ रहा है. We are here to just to facilitate you all, but the idea has to come from you. How to get the idea is first try to find a problem. जब उसका solution खोजेंगे तो idea आ जाएगा. Okay? ये देखिए किसी का ये problem था, किसी लड़की का, जब मैं कैप पहनती हूँ my photo is not clear. So she made this LED hat. I'm saying it in a funny tone, but it's not something to laugh about. But this was a genuine problem. उसका एक genuine solution आया. Okay? So, Michael Jackson का जो shoe है, that is a patented thing. Okay? So, these things, कितने diverse fields हैं जिसमें आपको patent मिल सकता है. Next slide. When I say that कि हाँ बहुत चीज़ों को patent मिलता है, people say, okay, fine. You all being the college students, you would relate to it that, okay, my parents did not give me pocket money this month. तो 2000 रुपए के नोट फर्जी की तरह, फर्जी वेब सीरीज देखी? तो उस वेब सीरीज में जैसे वो ड्राइंग करके बना देते हैं 500 रुपए का नोट, ऐसा आप लोग सोचेंगे कि मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा हूँ, मैं बना देता हूँ, और उसकी एक मशीन डाल देंगे प्रिंटिंग प्रेस. तो ये सारी चीजें जो लॉफुली गलत हैं, डू नॉट गो इनटू दोज थिंग्स बिकॉज आरबीआई फालतू में आपके पीछे पड़ेगी एंड देन लॉट ऑफ ड्रामा. सो मेक थिंग्स दैट आर लीगल. आपका किसी से झगड़ा हुआ तो आप बोले कि उसके घर में एटम बॉम्ब फिट कर देते हैं, करते हैं दिवाली के टाइम पे पटाखे लगा के आ जाते हैं किसी और के घर पे. सो दोज थिंग्स, ऐसी चीजों के बारे में, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, डू नॉट गो फॉर पेटेंटिंग. Since the farmer students are here, I will also say that कि India में procedure of doing a medical surgery is not given a patent. You guys must be thinking why? Because India is a developing nation and अगर उसमें heart surgery करने का जो procedure है उसको हमने patent दे दिया तो doing the heart surgery would become very expensive. We cannot do that. So machines को patent मिलता है, but not the procedure of doing some surgery. Okay? So this is done considering India's stand, and certain things are not allowed, like agriculture करने का कोई तरीका. किसी ने बोला terrace farming I have done in a unique way. I want to get a patent on it. So that thing cannot be given a patent because our farmers cannot afford the technology. Okay, so considering things that are for general public good, उनको patent नहीं मिलता है, like in the case of COVID vaccine. Next slide. When I say, okay fine, you have found a problem, आपको solution भी मिल गया, उसके बाद क्या करना है? You have to go, as sir has told, do not disclose to anybody. First, protect it, then only tell anybody about it. Okay? How to protect it is what I'm going to discuss now. Patent filing process. Next slide. You can do an online or an offline filing. For an offline filing, the nearest office for you guys is Delhi. And I would say that for online filing, this is the link that is given there. There you can go ahead and do an online filing. पहले digital signature चाहिए रहता था filing करने के लिए. But now, for ease of the process, we have related it with Aadhaar card. You can digitally sign the documents with your Aadhaar card. Okay? So, it's now a very simple process. Automated forms आ जाएंगे, उसमें आप अपनी details भरेंगे, and you can go ahead and file the patent. Next slide. क्या-क्या form चाहिए भरने के लिए? Anybody is, filing for the patent right now amongst you? Anyone that, that has opened the portal, किसी को कोई issue आया है? Okay, just to say that these are the 5 basic forms you need to submit. Form 1, which will have your basic details, name, address, phone number, and all those basic details. Form 2 is the most important one as it will have your invention. LED bail suppose था,
तो उस इंसान ने अपने पेटेंट में पूरा लिख के भेजा होगा कि एलईडी बेल ऐसा है, 1/1000 सेकेंड में इसका रिस्पॉन्स टाइम होगा, कोई क्रिकेटर आउट है क्या, ये बताएगा। तो सारा इन्वेंशन का जो डिटेल है वो फॉर्म 2 में जाता है along with the drawings. I would recommend to you all that do not hide the content from the patent office. Do not say that this is our trade secret, at least for initial few patents. Because if you do not disclose completely, then we cannot understand your invention. And if we do not understand your invention, then we will not be able to grant it. Okay? So people say that this thing is my trade secret and I don't want to disclose it. But when you do that, you are making, you are making the bed to getting it rejected, because once we do not understand your invention, we cannot do anything about it. Okay? So आप reference number use करिए, अपनी drawings में point out करिए, ये point number 1 है, ये 1 से ये काम होता है, ये ऐसा description में लिखें। जितना clearly आप लिखेंगे invention को, उतने ज़्यादा chances हैं कि the person who is examining the applications will be able to understand your invention. Okay? Form 3 will tell you the basic details about, कहाँ और कौन से country में आपने file किया है. Form 5 is the relationship between the applicant and the inventor. Form 18, the most important one, yet again, when I say that Form 18 क्या है? हमारे पास बहुत सारी applications आती हैं. The sequence that we follow for examination depends on Form 18. जिसने Form 18 पहले फाइल किया है, उसकी application पहले एग्जामिन की जाएगी. 48 months का टाइम होता है इसको फाइल करने के लिए, but if you delay 48th month में आप जाके फाइल करते हैं, तो आपसे पहले जिसने इसको फाइल किया है उसकी एप्लीकेशन पहले एग्जामिन की जाएगी. So this is the most important form. As soon as you go for patent filing, आपने complete specification जमा कर दिया, Form 18 फाइल करिए, because उतनी ही जल्दी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी. Okay? So this is a common misconception that Form 18 48 months के बाद जमा करना होता है. ऐसा नहीं है. You can file any time before 48 months. That is the clause. Any time before 48 months, not 48th month में. Okay? So जितना जल्दी आप फाइल करेंगे उतना benefit है. Next slide. This is the basic fee structure right now that is there for filing of the patent. You can file in 5,600 rupees if you are an individual applicant. Next slide. When I say, okay, this is how our portal looks like. Just like you can create an account and go for filing through this portal. Next slide. When I say that, okay, the fee structure, the motive of the government is clear when it has notified these 2 rules. Educational institutions are given a relaxation by 80% in expedited filing cases. So government is clear that they are promoting the educational institutions, and now it is up to the education institution to take this benefit or not. Lot of government schemes are there, Kapila Mission, that जिससे fees आपकी काफी reduce हो जाती है. Even for women applicants, the fees has been reduced by 80% for expedited examination. Expedited examination जब मैं बोलती हूँ इसका क्या मतलब है? लेमैन के टर्म में तत्काल सिस्टम पता है सबको रेलवे का? लास्ट में जाके टिकट बुक कर लेते हैं. ऐसे ही है एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन का प्रोसेस. यू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस जिससे आपकी एप्लीकेशन जल्दी एग्जामिन की जाए. ओके? सो इसमें रिलैक्सेशन फीमेल एप्लीकेंट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड किया गया है, बिकॉज वी वांट टू मोटिवेट आवर इन्वेंटर्स. ओके? नेक्स्ट स्लाइड. प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट स्लाइड. एक ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे. वंस यू गेट एन आइडिया, गो फॉर फाइलिंग. ओके? आप प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करें जिसमें आपने बेसिक डिटेल्स दी हैं. उसके बाद आपको 12 महीने का टाइम मिलेगा टू टेल अबाउट योर इन्वेंशन इन डिटेल. ओके?
Once you do that, your application would be published. Once it is published, आप उससे पहले भी आप request to examination file कर सकते हैं. Once we get your examination and आपकी application का number आ गया है, we will examine your application. Okay? आपकी application जब हम examine करेंगे, we will issue you a FER, First Examination Report. मतलब कि हम आपके इन्वेंशन को स्टडी करेंगे, उसमें हमें क्या प्रॉब्लम्स लग रही हैं, वी विल मेंशन दैट इन FER. FER को पढ़ने का एक तरीका होता है, आई लाइक टू डिस्कस दैट. वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है FER, फॉर्मल एग्जामिनेशन एंड टेक्निकल एग्जामिनेशन. फॉर्मल एग्जामिनेशन में आपने अगर फॉर्म भरते समय कोई कमी रह गई है, उसके बारे में मेंशन रहेगा. ठीक है. टेक्निकल एग्जामिनेशन में मेंशन रहेगा कि आपका इन्वेंशन प्रायर आर्ट के कंपैरिजन में सेम है कि नहीं है. अगर सेम है, देन नेक्स्ट स्लाइड. अगर आप FER का रिप्लाई में हमें लिख के भेजिए कि क्या डिफरेंस है, जो हमने डॉक्यूमेंट साइट किया था और आपके इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है, आप हमें रिप्लाई में भेजेंगे. यू हैव टू फाइल द रिप्लाई विद इन 6 months. If you do not do within 6 months, your application would be abandoned. Okay? So it is very important this timeline because आपको 6 महीने के अंदर रिप्लाई करना है. आप जब रिप्लाई कर देंगे, we will re-examine your application. Okay? After that, एक hearing issue होगी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू. You will have a hearing with the controller. The person will tell you, the controller will tell you that what is the office standpoint and how your invention is different from it. If if a closure can be brought, if all the objections are removed, then the patent would be granted. And I say that patent is granted, not registered. Okay? These two words are different. So if all the objections are removed, then the patent would be granted. Okay? Next slide. ये basic timelines हैं which you have to follow for patent filing. I'll not go into the depth of it because I feel that people who are going for filing must be aware about it. Okay, next slide. This is the patent certificate. After all this process, what you get is this certificate, जिसमें applicant का नाम mention होता है, किस बारे में आपका इन्वेंशन का जो टाइटल था वो मेंशन्ड है, एंड कितने ड्यूरेशन तक ये वैलिड है वो मेंशन्ड होता है. सो दिस सर्टिफिकेट इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट स्लाइड. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दैट इज डिजाइन्स. डिजाइन वाला कॉन्सेप्ट याद है जो मैंने बताया था? HP और एप्पल के लैपटॉप दिखने में अलग दिखाई देता है, उसको बोलते हैं डिजाइन. नेक्स्ट स्लाइड. अब आप ये देखिए, मुझे एक बार बताइए, कोका कोला की बोतल देखिए सबने? ओके. पेप्सी की बोतल, दोनों बॉटल्स में क्या फर्क है? डिजाइन. डिजाइन में क्या? द शेप, द साइज, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉटल्स डिफर. इसको बोलते हैं डिजाइन. अ वेरी सिंपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आंख के सामने दिखाई दे रहा है उसमें क्या डिफरेंस है, उसको बोलते हैं डिजाइन. ये बॉटल्स आप देखिए, इनमें कॉन्फ़िगरेशन लाइन का अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है, ये सारे हैं डिजाइन्स. नेक्स्ट स्लाइड. अगर अब हम थ्योरी की बात करें कि भाई डिजाइन क्या है, इट इज, जैसे मैं बोल रही हूँ, एस्थेटिक अपीयरेंस. व्हाट इज द लुक ऑफ दैट प्रोडक्ट इज व्हाट इज अ डिजाइन. ओके. नेक्स्ट स्लाइड. व्हाई द कंपनीज जो होती हैं वो डिजाइन पे इतना फोकस करती हैं. अच्छा ये बताओ, डोलो की दवाई देखी है सबने? डोलो खाई भी होगी. ओके. एंड चेस्ट एंड कोल्ड, ये दोनों मेडिसिन का डिजाइन फर्क है. ओके. वाई द कंपनी इतना एफर्ट क्यों देती है कि मेडिसिन अलग अलग कलर की होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं? वाई द कंपनीज डू इट? उनको तो फायदा तब होगा ना कि वो एक ही मशीन डालें, उसी में सारा दवाई बन जाए.
but they make the effort and make different designs for the medicines. That is done because कोका-कोला और पेप्सी की बॉटल अलग क्यों दिखती है? बिकॉज अपनी ब्रांड बनाते हैं कंपनी वाले. ये होती है मार्केटिंग. आप रात में सोते समय भी डोलो खानी है तो डोलो ही लोगे, चेस्ट एंड कोल्ड नहीं लोगे, लाइट बिना ऑन करे, उसकी शेप के बेसिस पे. दैट इज व्हाट इज द मार्केटिंग. कंज्यूमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाना, यूएसपी जिसको बोलते हैं हम. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. एग्जाम्पल्स क्या हैं डिजाइन के? डिजाइन्स कैन बी फॉर द प्रोडक्ट्स. इट कैन बी अ डिजाइन फॉर साड़ी, इट कैन बी अ डिजाइन फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल. आप बाइक का डिजाइन बनाइए. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइक्स, मेक अ डिजाइन फॉर बाइक्स. आई एम नॉट सेइंग दैट आप बाइक मैन्युफैक्चरिंग की एक यूनिट खोल दीजिए सुभारती के बाजू में. You do not have money for that, but make the design, and if that design is efficient and good, the companies will buy it from you. That will become commercialization of the design. Okay, next slide. You can make the design for jewelry. If you are good in drawing, आप कोई jewelry piece design करिए. Okay, आप कोई भी cutlery piece design करिए. Medicines है, watches है. The Fossil watch and Titan watch, जब भी आप मार्केट में आप खरीदने जाएं तो उन कंपनी का डिजाइन देखिएगा. हर एक कंपनी की एक स्मार्ट वॉच आ रही है आजकल, बट हर एक कंपनी की स्मार्ट वॉच का डिजाइन इज डिफरेंट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. व्हेन आई से दैट ओके, डिजाइन में क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे पेटेंट में था हमारा नॉवेल्टी, यहाँ पे भी सेम है कि डिजाइन शुड बी समथिंग दैट इज न्यू एंड ओरिजिनल. ओके, सेकेंड पॉइंट, कहीं और से कॉपी पेस्ट मत करिए. दिस इज एन इंडिया विच इज नॉट रिवॉर्डिंग कॉपी पेस्ट. वी द न्यू इंडिया इज रिवॉर्डिंग ओरिजिनलिटी, योर हार्ड वर्क. लॉन्ग आर द डेज गॉन वे जब कॉपी पेस्ट करके थीसिस लिख सकते थे, बट अब ऐसा टाइम नहीं है. अब यू हैव टू वर्क फॉर ओरिजिनल कंटेंट. Okay, so do not copy your design from somebody else. Next slide. Third criteria है significantly distinguishable. कई बार आपने भी जब आपकी यूनिवर्सिटी ने डिजाइन एप्लीकेशन फाइल की होंगी, it gets rejected on this point. समझने की कोशिश करिए ये पॉइंट क्या है. significantly distinguishable. एग्जाम्पल देती हूँ layman's term में, do not quote it anywhere, it is in a very layman's term. मोनाको बिस्किट देखा है? इट इज अ सर्कुलर बिस्किट जिसके अंदर 4 या 5 होल होते हैं, करेक्ट? अगर मैं एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाती हूँ मेरठ में, एंड मैंने बिस्किट का डिजाइन बनाया, दैट सर्कुलर बिस्किट, उसके अंदर 7 होल बना दिए. सो दैट इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल एंड द पेटेंट ऑफिस विल रिजेक्ट माई डिजाइन. सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल समझ आया? कुछ डिजाइन में मेजर चेंज होना चाहिए. मैंने आज तक बिस्किट हेक्सागन शेप का कोई नहीं देखा, ऑक्टागन शेप का बिस्किट. व्हाई इट इज नॉट मेड? 2 रीजन हो सकते हैं, वेदर इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू मेक इट और somebody has not thought about it. So think in the directions where nobody has thought about it. It would be easier to getting a design. Next slide. जैसे ये है कि कुछ कुछ चीज़ें पेटेंट में भी हम नहीं फाइल कर सकते हैं. ऐसी डिज़ाइन में यू कैन नॉट डिज़ाइन अ न्यू नेशनल फ्लैग, बट ऑब्वियस. ओके, यू कैन नॉट डिज़ाइन न्यू स्टैम्प्स. सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रॉपर डिज़ाइंस हैं, यू कैन नॉट चेंज दैट. किसी भी मिनिस्ट्री का आप लोगो नहीं चेंज कर सकते विदाउट ड्यू प्रोसेस. ओके, सो these are the things that are restricted under design. Next slide. अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फाइलिंग का. I'll briefly go into it because ये सेम प्रोसेस है पेटेंट की तरह. नेक्स्ट स्लाइड. You can do an online or offline filing. Next slide. Just like patents, okay? And इसकी फीस is just 1000 rupees. 1000 rupees में एक बारी में हम खर्चा कर देते हैं जब हम डोमिनोज जाते हैं. Okay, so sacrifice a pizza and go for filing of design. Maybe your design is good and some company buys it.
ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सेम पोर्टल है पेटेंट एंड डिजाइन फाइलिंग का। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, डिजाइन फाइल करते हुए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। पहला है फॉर्म 1, उसमें आपका ड्राइंग्स होगा, डिजाइन, उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स है, साथ में आपका डिजाइन का ड्राइंग्स है। ये जरूरी नहीं है कि आप मैटलैब या किसी सॉफ्टवेयर पे डिजाइन की ड्राइंग करके दें, आप हैंड मेड ड्राइंग्स भी इनिशियल स्टेज में फाइल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। आपने जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिया उसके बाद क्या करना है, प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। सेम एज पेटेंट, आपकी एप्लीकेशन विल कम टू अस, वी विल एग्जामिन योर एप्लीकेशन, and once we have examined your entire application, we will tell whether the design can be registered or not. And I here use the term registered. Design is registered and patent is granted. Okay? So आज आप ये जाके इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस गूगल करिएगा। Why? Purposefully ऐसा नहीं किया गया है, there is a reason behind it. Next slide. जब आपका डिजाइन जो है, एक डिजाइन में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेट का। जैसे कि आई एम अ गुड, सपोजिंगली आई एम अ गुड ज्वेलरी डिजाइनर, आई मेक अ नेक पीस एंड मैंने साथ में इयररिंग्स भी बनाए, सो आई कैन फाइल दिस इन वन एप्लीकेशन, आई डोंट नीड टू पे ट्वाइस। जैसे आपने कोई सोफा सेट डिजाइन किया, कटलरी सेट डिफाइन किया, उसको आप एक ही एप्लीकेशन में फाइल कर सकते हैं। ओके, थर्ड टॉपिक आता है ट्रेड मार्क्स, व्यापार चिन्ह। इट्स नाम से क्लियर है, विल डायरेक्टली गो टू द इमेज स्लाइड ऑफ ट्रेडमार्क्स। आपसे अगर मैं बोलूं कि ओके, स्लाइड्स चेंज करें, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। ओके, आई वांट टू स्टार्ट विद दिस स्लाइड। When I say M, what does it mean to you? McDonald's? Nobody told me it is English alphabet letter M. ये है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मैकडॉनल्ड्स की। मैकडॉनल्ड्स ने हमारे दिमाग में इतना भर दिया है कि M का मतलब मैकडॉनल्ड्स है, M का मतलब इंग्लिश अल्फाबेट M नहीं है। दैट इज द ट्रेडमार्क, इसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। जैसे हम सबका एक अपना नाम होता है, दैट इज आवर आइडेंटिटी, वैसे ही जब बिजनेस की कोई आइडेंटिटी होती है उसको बोलते हैं ट्रेड मार्क। ओके, व्हेन आई से अ टिक मार्क, उससे क्या, व्हाट डू यू ऑल फील, व्हाट इज इट? नाइकी। एंड आप जब मुझे नाइकी बोल रहे हैं, आपके दिमाग में कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है नाइकी का? शूज। नाइकी हैज गॉन इनटू मैन्युफैक्चरिंग टी शर्ट्स ऑल्सो, बट 90% लोगों ने यहाँ पे बोला शू, बिकॉज वो उनका स्टार्टिंग प्रोडक्ट था। तो ये सोचिए, जब आप कोई स्टार्टअप बनाएंगे आगे जाकर, तो उसका लोगो कैसे बनाना है, उसका आइडिया आज आपको मिला होगा। यू हैव टू मेक अ लोगो विच इज अट्रैक्टिव फॉर दैट प्रोडक्ट, विच इज अट्रैक्टिव फॉर द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए टिक मार्क का मतलब होता है समथिंग दैट इज पॉजिटिव। तो नाइकी हैज यूज्ड इट, पॉजिटिव मतलब कुछ अच्छी चीज, जैसे अच्छे जूते। ओके, सो मेक अ ट्रेडमार्क दैट इज पॉजिटिव, दैट आइडेंटिफाइज योर प्रोडक्ट। ओके, व्हेन आई से कि जो ट्रेडमार्क है, इट कैन बी गिवन टू अ टैग लाइन। ये दिल मांगे मोर किसकी टैग लाइन है? पेप्सी। परफेक्ट। सो पेप्सी ने एक अट्रैक्टिव टैगलाइन को ट्रेडमार्क कराया है, दैट इज ये दिल मांगे मोर। पीपल विल से कि ओके आई वांट मोर, सो आई शुड बाय अ पेप्सी। ये एक होती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो आप स्टार्टअप खोलें, यूज दीज टेक्निक्स टू मेक अ लोगो फॉर योर कंपनी। आपका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसके आसपास आप अपना लोगो डिजाइन करें। ओके, ट्रेडमार्क कैन बी एनी लोगो, it can be any word, it can be any symbol, it can be any tagline. Okay, so these are what are the trademarks. Next slide.
ये दो डिफरेंस देखिए, हम यूजुअली अपनी लाइफ में जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ये दो सिंबल दिखाई देते हैं, ये दोनों सिंबल्स का अलग मीनिंग है, बट वी यूज इट इंटरचेंजेबली. TM and R. R meaning that the product is registered. But TM का मतलब ये है either the product is registered या filing अभी complete नहीं हुई है, application pending है. तो always go for buying the products with R. मतलब उनका पूरा process of getting the trademark is completed 100%. Okay, next slide. Copyrights. The fourth concept for today is copyrights, which I feel personally is very important for the students. आप लोग YouTube देखते हैं? Okay. किसी ने कोई कंटेंट डाला और ऐसा आया कभी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट लिख के आया है किसी के कंटेंट पे? पता चला क्यों आया था? Did you come to know why on your video copyright infringement came? Because you might have used somebody's else original work and put it in your YouTube channel without asking the permission of the original creator. जब आप किसी का कंटेंट कॉपी करते हैं, YouTube will pull down that video जब ओरिजिनल क्रिएटर ने उसके खिलाफ कंप्लेन की. So this is the copyright. इंस्टा रील्स बनाते हो अगर आप लोग YouTube पे, that is the concept of copyright. Meaning that अगर आप कोई ओरिजिनल कंटेंट बनाए उस पे कॉपीराइट लीजिए. If you perform a dance in your annual function, यहाँ on this stage, if you sing a song on the stage with your original song, okay, if you perform some steps which are originally created by you, you can file for the copyright. If you perform dance, perform song, आपने खुद से कोई song लिखा है, कोई poem लिखी है, कोई story लिखी है खुद से, you can go for filing of the copyright. Okay? उससे क्या फायदा होगा? आपने एक poem लिखी खुद से, ठीक है? आपने उसका copyright नहीं लिया. आपने उसको Times of India पे print कर दिया. Okay? Somebody else uses your content, you cannot do anything about it. बट अगर आपने कॉपीराइट रजिस्टर किया हुआ होता, यू कुड हैव सूड द अदर पर्सन. ओके, जो आप यूट्यूब पे चैनल्स बनाते हैं, एजुकेटिव चैनल्स हो भले वो, अगर आप किसी और की स्लाइड्स यूज करते हैं, गिव क्रेडिट टू दैट ओरिजिनल क्रिएटर, तो यूट्यूब विल नॉट पुल डाउन योर वीडियो. और टेक द परमिशन ऑफ द पर्सन हु इज ओरिजिनली क्रिएटेड, जिससे कि यू विद ड्यू परमिशन ऑफ दैट पर्सन यू आर यूजिंग देयर कंटेंट. ओके, कॉपीराइट का सब्जेक्ट मैटर जो जैसे दिखा रखा है इसमें, मूवीज, वेब सीरीज, ये सब कॉपीराइट के अंदर आते हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ. अच्छा, मूवी आप लोग सब देखते हो? लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी? अच्छा, पठान मूवी का कॉपीराइट किसके पास है? डायरेक्टर के पास, राइटर के पास? किसके पास है कॉपीराइट? किसी ने यहां से कुछ बोला, क्या बोला? प्रोड्यूसर. 100% करेक्ट. मूवीज का कॉपीराइट इज देयर विद द प्रोड्यूसर. ही इज द मोस्ट वेल्दी पर्सन बिकॉज उसके पास कॉपीराइट है. बट वी नेवर गो टू वॉच, आई मीन मैं तो कभी कोई मूवी प्रोड्यूसर का नाम देख के नहीं जाती हूँ. सो वाई? प्रोड्यूसर इज अ पर्सन जिसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कॉपीराइट है मूवी का. इसका क्या मतलब है? पठान का पार्ट 2 अगर आता है, डॉन मूवी देखी आपने? डॉन मूवी के 2 पार्ट थे, राइट? डॉन मूवी का जब सेकंड पार्ट आया तो प्रोड्यूसर ने पहले परमिशन ली पहले वाले प्रोड्यूसर से कि कैन आई मेक अ डॉन 2 और नॉट. परमिशन लेने का क्या मतलब है? कोई ऐसे फ्री में परमिशन तो ही ना देगा, बोलेगा भाई मुझे प्रॉफिट का मार्जिन देना. यही बात है. सो दैट इज व्हाट इज अ कॉपीराइट. दैट इज व्हाई आई सेड ही इज द मोस्ट वेल्दी पर्सन. क्योंकि आगे जाके 60 इयर्स तक कॉपीराइट मिलता है मूवी का. 60 साल तक अगर उसका रीमेक बनता है, गाने का रीमेक बनता है, रीमिक्स बनता है,
रीमिक्स के केस में भी ओरिजिनल जो क्रिएटर है उससे परमिशन लेनी पड़ती है, उसको आप थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन देंगे तभी वो अलाउ करेगा आपको, ठीक है। सो कॉपीराइट बहुत ही एक समथिंग जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, ऐसी वाली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ओके, सो एक और एक फैक्ट बताती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने चेतन भगत, इज इट फेमस राइट नाउ ऑथर? मैं हमारे टाइम पे चेतन भगत यूज्ड टू बी वेरी फेमस, अभी भी है? ओके, सो दे आर लॉट ऑफ फैंस ऑफ चेतन भगत। सो चेतन भगत ने एक नॉवल निकाली थी, कौन सी नॉवल? हाँ, हाफ गर्लफ्रेंड। ओके, उसके ऊपर एक मूवी बनी थी, क्या नाम था मूवी का? नाम क्या था? हाफ गर्लफ्रेंड। ओके, तो कॉपीराइट इज अ बंडल ऑफ राइट्स, मतलब कि अगर आपने एक बार किताब लिख दी, उसके ऊपर मूवी बने, गाना बने, वेब सीरीज बने, सारा कॉपीराइट आपके पास होगा। चेतन भगत की किताब थी, उस पे मूवी बनी, तो मूवी के प्रोड्यूसर ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन चेतन भगत को दिया होगा, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट चेतन भगत के साथ किया होगा। आप जाके आज इस बारे में सर्च करो कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, बट थियोरेटिकली दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉपीराइट। अगर कोई वेब सीरीज बनती है, अगर आप आज कोई एक स्टोरी लिखते हैं, उस पे वेब सीरीज बनती है, यू कैन सीक द प्रॉफिट ऑफ दैट, अगर आपने उसको रजिस्टर किया है तो ही। सो इस चीज को समझने के लिए, इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैंने कहा कि कॉपीराइट को रजिस्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जैसे प्रीवियस स्लाइड। कॉपीराइट जो है अलग अलग ड्यूरेशन के लिए मिलती है। जैसे कि आपने कोई नॉवल लिखी, उसकी कॉपीराइट आपको मिलेगी फॉर द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स। मूवीज का कॉपीराइट 60 ईयर्स तक मिलता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ये फाइलिंग का प्रोसेस है विच इज सेम लाइक अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, तो मैं इसको अभी डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगी, बट यू कैन टेक अ पिक्चर एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन कॉन्टैक्ट मी। नेक्स्ट स्लाइड। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, जैसे कि सर ने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या हैं। GI टैग बोलते हैं। न्यूज में हमने सुना होगा, रसगुल्ला को लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, अभी हुआ था, क्या हुआ था? उड़ीसा गवर्नमेंट एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में फाइट हुई थी, केस हुआ था, नॉट द फाइट, आई एम sorry to use the word fight, it was a case between Odisha government and West Bengal government that Rasgulla is a GI tag of which place. Okay? तो आज आप वो जाके न्यूज आर्टिकल दोबारा पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा कि क्या चीज को लेके डिबेट हुआ था। ये GI टैग होता क्या है? नेक्स्ट स्लाइड। राइट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्पेसिफाइड more than 400 products all over India as the GI tag. मतलब कि क्या है, किसी कोई एक जगह। Sorry to interrupt you, ma'am. Lots of movement is there. Please, students, have patience and take your seats. Please don't move outside. Thank you, ma'am. Yeah. Just few more minutes. I'll not take much of your time. बट जैसे मैं GI टैग के बारे में बता रही थी, भौगोलिक चिन्ह बोलते हैं इसको। किसी कोई एक जगह की जो स्पेशल आइटम है, जो उसी जगह में बनाया जाता है या ग्रो किया जाता है, उसको गवर्नमेंट ने GI टैग का नाम दिया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई दिस इज डन इज, पहले एग्जांपल्स देखते हैं। व्हेन आई से GI टैग, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग जब आप घूमने जाते हैं, यू बाय टी फ्रॉम देयर। व्हाई? ऐसा तो नहीं है मेरठ में चाय नहीं मिलती है, मेरठ में भी चाय मिलती है, करेक्ट। बट जो दार्जिलिंग की चाय है उसमें एक अलग खासियत होती है। व्हाई? बिकॉज वो उसी क्लाइमेटिक कंडीशन में, सॉइल कंडीशन में ग्रो की जा सकती है। सो इट हैज अ पेक्यूलर टेस्ट। दैट टेस्ट इज वॉट, मतलब वो जो प्रोडक्ट है उसको GI टैग बोलते हैं। मेरठ का क्या फेमस है? मेरठ सिजर्स, कैची। व्हाई?
आप आज जाके सर्च करिए कि मेरठ की कैंची में ऐसी क्या बात है जो दिल्ली की सीजर्स में ना मिले. Why GI tag is given to the मेरठ कैंची? So गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारी चीजों को GI टैग दिया, जैसे कि कांचीपुरम की सिल्क की साड़ियां, संबलपुर की सिल्क की साड़ियां, इनको मिला है GI टैग. क्यों दिया गया है? नेक्स्ट स्लाइड. Why? So that वहाँ के ओरिजिनल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. Mostly these products are made by rural people who are not so well off. So in order to give them a good market, government has done this. Supposingly, last week I was in Odisha. I did not, I didn't want to buy anything, but just because Sambalpuri silk sari is given the GI tag, I bought it. Okay, so in a way, tourist को attract करने के लिए, वहाँ के लोगों को economic development करने के लिए, government has given these tags. Okay, next slide. When I say, okay, the end of the session is coming, the last topic, SICLD. This topic is really, that makes me to say more about it because I've worked in the private sector, Siemens Technologies, in this field of semiconductors. जो semiconductors होते हैं, they are very small chips. आजकल smart watches आ गई हैं. Now एक इंजीनियर का ये काम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, उन चिप्स को कैसे प्लेस किया जाए जिससे कि एफिशिएंटली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करे. बी इट योर वॉशिंग मशीन, बी इट योर स्मार्ट वॉच, बी एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. सो दिस इज अ अपकमिंग फील्ड, SICLD. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. वी हैव SICLD एक्ट जिसके बेसिस पे वी गिव द रूलिंग्स वेदर द SICLD कैन बी रजिस्टर्ड और नॉट. नेक्स्ट स्लाइड. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें SICLD की, सेम है पेटेंट्स की तरह. यू गो फॉर फाइलिंग, वील एग्जामिन द एप्लीकेशंस एंड इफ ऑब्जेक्शंस आर रिमूव्ड द SICLD वुड बी रजिस्टर्ड. नेक्स्ट स्लाइड. कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द सेशन, IP एवरीवेयर. नेक्स्ट स्लाइड. व्हेन आई से IP एवरीवेयर, तो ये मैंने अपने पहले एग्जाम्पल से पोर्ट्रे कर दिया था कि लैपटॉप के अंदर 5 अलग अलग तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं. तो इट इज नीडलेस टू से दैट IP इज एवरीवेयर. राइट नाउ आप बैठे हैं यहाँ पे, दिस इज इन्वॉल्विंग सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ये माइक सिस्टम इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द प्रोजेक्टर वॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, सो we are in the times where we are governed by intellectual property. जो lights है, light का invention किसने किया था? Thomas Alva Edison. That was an invention in those times. वहाँ से लेकर अब हम कितना आगे develop हो गए हैं, that is because of innovation, invention in the society. That is why Honorable Prime Minister says creative India, innovative India. Because that is the way we can develop. Okay, the important takeaways: first, protect, then tell to anyone. आपके बाजू में बैठा हुआ इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, बट अगर उसको आपने अपना आइडिया पहले बता दिया and that person goes for the filing before you, he would be given the patent or any intellectual property and you cannot do anything about it. क्योंकि आपके पास कोई पेपर नहीं है ये प्रूफ करने के लिए कि आपका आइडिया था. फर्स्ट, प्रोटेक्ट, देन पब्लिश. सेकेंडली, all these rights are territorial in the nature. As I said, you can be protected only in India. Thirdly, अगर आपको कोई बोले कि आपको पेटेंट का सर्टिफिकेट मैं यूपी गवर्नमेंट से दिलवा सकता हूँ, मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, so that is wrong. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई भी सर्टिफिकेट इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, नॉट बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट, नॉट बाय एनी यूनियन टेरिटरी. ओके, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर नॉट ऑटोमेटिकली आपको रिलीफ नहीं मिलता है. जैसे कि आपकी जमीन पे कोई कब्जा करता है अगर, तो पुलिस वाले आके तो नहीं पूछते ना कि मैडम आपकी जमीन पे कब्जा हुआ है क्या, आप FIR फाइल करते हो पहले. ऐसे ही कोई अगर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेता है, यू नीड टू टेल द यूट्यूब कि माई कंटेंट इज गेटिंग कॉपीड, देन ओनली यूट्यूब विल पुल डाउन.
कोई YouTube will not come and say कि okay आपका content copy हो रहा है क्या? So no automatic relief is given for any intellectual property. Lastly, I would say that if you are going for filing at the personal level and you have shortage of funds, you can look at various schemes of government like Kapila scheme is going on right now, and it's not necessity that आप patent agents को बहुत पैसे दे filing करने के लिए. You can file as an individual also. It's not mandatory to employ the patent agents. So that would be all from my end. And coming to the closure of the session now, if any questions, I'll be happy to take. Okay, meanwhile आप questions सोचिए, I'll tell you one more thing, that you can build your career in these field. कैसे? दो तरीके हैं. एक तो Ministry of Commerce एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, in which you get the post of Group A gazetted officer. You get the initial post of examiner of patents and design, which I am. So ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है Ministry of Commerce, and in which prelims and mains are there. You need to qualify that and you can build your career in this field. Secondly, you can be at the other end, like you can become a patent attorney. आप उसका एग्जाम Ministry of Commerce Office of Controller General कंडक्ट करवाता है. They are registered patent attorneys, उनको एक registration number मिलता है. They have to qualify the exam and interview process conducted by our office. So when you do that, you can get employed in any private sector firm and become the patent attorneys and help in filing of the patents. Okay, so these are the two areas in which you can build your career at present. And there are a lot of other ways. अगर आपने कोई एक intellectual property ही बना ली, then you will be way ahead from us. You will get a lot more money than these jobs. So I would say that be a job creator rather than being a job seeker. Okay. So any questions now? मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस से है, क्योंकि फोटोग्राफ एंड वीडियोस, हाँ, फोटोग्राफ एंड वीडियोस, अब रोजाना कई बार क्लिकिंग जो होती है वो थाउजेंड्स में भी हो जाती है, हंड्रेड्स में होती है, तो उसका हम हर किसी फोटोग्राफ को कॉपीराइट नहीं ले सकते. तो उसका क्या प्रोसेस हो सकता है? जैसे हम कहाँ ऐसे प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करें कि जब हम वहाँ पे पब्लिश कर देते हैं तो उससे हमें एक ऑटोमेटिकली कॉपीराइट मिल जाता है? न्यूज़पेपर्स could be one medium. Secondly, any magazine that is reputed, you can use that. And photograph के केस में आपको एक और एक चीज़ बताना चाहूँगी, your photograph should be original. हाँ. पहला पॉइंट. तो ओरिजिनलिटी का जो क्लॉज है that is very broad. Okay. फोटोग्राफ के केस में क्या होता है कि यूजुअली पीपल हैव ऑल गॉन टू दैट पर्टिकुलर स्पॉट एंड किसी ना किसी एंगल पे वो फोटो ली होगी. Okay, but if you are a photographer by the profession or by anyone as a hobby, if you are following it, and अगर आपने कोई particular photo ली है उस पे copyright मिल सकता है आपको, तो the safest mechanism is that copyright को आप register करें copyright office में. Okay, उसको register जब आप copyright office में करते हैं, the filing fee for copyright is I think just 500. Okay, it's very less. And once you file for the copyright in the office, it becomes permanently yours. Then nobody can question. But अगर आप किसी magazine, newspaper में publish करते हैं, तो भी वो date का हम basis ले सकते हैं कोई भी suit file करने के लिए. क्या हम internet को भी use कर सकते हैं, like putting on Facebook and YouTube? No. That is not a proper mechanism. मतलब क्योंकि lot of crimes are happening of forgery in that case. So it can be, but the safest ways I have told you. Okay, next question is regarding the YouTube videos. हाँ. अब जनरली क्या होता है कि लोग YouTube videos डाउनलोड करते हैं और उनका न्यू कंटेंट तैयार कर देते हैं, तो उसमें कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि जो कंटेंट हम उठा रहे हैं वो कॉपीराइट नहीं है, या कैसे हम पता लगाएंगे कॉपीराइटेड है? देखिए, अगर आप किसी और का कंटेंट पहली बात अगर ले रहे हैं, उस पर वीडियो बना रहे हैं, तो दैट इटसेल्फ इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. बट एज आई सेड दैट अगर आप उसको मॉडिफाई करते हैं इन सच अ वे दैट यू आर एबल टू पोर्ट्रे योर ओरिजिनलिटी इनटू इट, देन दैट वुड नॉट कम अंडर द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. ओके, इसका चेकिंग का राइट नाउ द ओनली वे इज टू गूगल इट आउट कि ऐसा कोई कंटेंट अभी तक है कि नहीं है, बिकॉज ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो वीडियोस को डिडक्ट करके बता दे कि ये कॉपीड है कि नहीं है. जैसे थीसिस पेपर का हम कॉपीड कंटेंट है कि कितना परसेंटेज कॉपीड है बता सकते हैं, बट वीडियोस के केस में अभी तक ऐसा नहीं है.
So the only way that can be done is through the googling it out. That's it. Okay. Thank you. थैंक Yes, यू sir. मैम। Yeah. मेरा एक क्वेश्चन है मैम, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स या बहुत लोगों के पास एक सिंगल लाइन आइडिया होता है, Right. तो उसको हम कैसे कॉपीराइट या किसी उसमें उसको पेटेंट करा सकते हैं? क्या संभव है सिंगल लाइन आइडिया? Yes, yes, perfect, sir. This is a very good question, and I'm happy that this question has been asked. Is that कि कई बार हमारे आइडियाज इतने छोटे होते हैं, जैसे मैंने बेबी हैट का एग्जांपल दिया, तो उस समय उस इंसान की उसने ये बोला कि मैं एक हैट बनाऊंगा जिससे जो कोनिकल फैशन का हैट होगा जिससे बच्चे की आंख में शैम्पू ना जाए। ये एक लाइन का इन्वेंशन है, बट दैट पर्सन मेड अ पेटेंट आउट ऑफ इट। सो आपके पास जब कोई स्टूडेंट का ऐसा कोई आइडिया आए, आप स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेट करिए सो दैट योर नेम ऑल्सो कम्स इन टू इट। Okay, because when your name will be involved, you will work more harder to getting it patented. Okay, nothing is free. So अगर आप स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व होके उसके आइडिया पे वर्क करेंगे, then you can get a patent on it. जैसे कि उसका अगर आइडिया है कि I want to design a electronic bike, ठीक है, तो आप उसके साथ बैठिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से कॉन्सेप्ट डिस्कस करिए कि ऐसी बाइक का डिज़ाइन जो फिजिबल हो, जो ज़्यादा एफिशिएंट हो, कम वेट का हो, ऐसे डिज़ाइन पे फोकस करके आप बना सकते हैं डिज़ाइन। सो आई वुड से दैट यू गेट अ जॉइंट एप्लीकेशन डन विद योर नेम एंड स्टूडेंट्स नेम सो दैट बोथ द इंटरेस्ट आर देयर। जब दोनों लोगों का इंटरेस्ट होगा, ग्रोथ वुड बी बेटर इन दैट एरिया। सो दिस वे यू कैन डेवलप इट। Madam, myself, Professor Pankaj Kishore Misra from Department of Paramedical Sciences. I have a question related to the copyright transfer. When we protect our thesis for masters as well as for PhD students through copyright, and in future, if we wish to publish the content of that thesis, okay, in a research paper or in a review article, so all publishers, first they ask to transfer the copyright. Okay, so in that case, how we can protect our old content? This is my first question. My next question, this is also related to this. Is there any criteria for joint ownership of corresponding author or first author in a copyright section for a research paper or a review article? Okay, so आपका let me just re-quote your question so that I understand it properly. आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हमें कोई कॉपीराइट को ट्रांसफ़र करने को बोले तो उससे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? Exactly. ओके, तो इसका आंसर ये है सर दैट देयर आर लॉट ऑफ एग्रीमेंट्स दैट हैपन दीज डेज। यू कैन से दैट दिस इज माई कॉपीराइट, आई हैव गॉट द कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द कॉपीराइट ऑफिस ऑफ इंडिया, and if I transfer you my copyright, these are the profit margins that I am seeking. Because you cannot transfer your right to anybody without any benefit to yourself. Exactly, ma'am. But Yeah. the journals, those are included in the Web of Science and other international indices. They first sign agreement with the corresponding author. Before writing the article they sign, right? Yes, no. First we ये submit. देखो, ये तो कॉमन चीज़ है। जैसे कि आप सुभारती में हैं अभी, आप सुभारती के अंडर ही कोई पेटेंट अभी फाइल कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज द आई डोंट नो द लीगल बैकग्राउंड व्हाट सुभारती इज फॉलोइंग, बट लाइक सपोज इफ आई टॉक अबाउट माई कॉलेज, मेरा कॉलेज क्या फॉलो करता है कि अगर आप हमारे कॉलेज के अंदर है एंड इफ यू डू एन इन्वेंशन दैट वुड बी इन द नेम ऑफ द कॉलेज, you would be the inventor. So are there any guidelines like कि हम लोग को ये चीज़ें फॉलो करते हुए उस कंसेप्ट को No guidelines per se. Okay. It's just that it should be your original content if you go for filing of the copyright. Thank you. Yeah. Ma'am, this side. Okay, where is it? First is okay, yeah. मेरा क्वेश्चन डिज़ाइन से रिलेटेड है। हाँ. क्योंकि हम कह रहे हैं कि सोसाइटी से अगेंस्ट हम चीज़ें डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, जैसे एटॉमिक एनर्जी है और या पेटेंट नहीं कर पाएंगे। मेरा क्वेश्चन है आर्म्स डिज़ाइन से रिलेटेड। क्या आर्म्स अगर कोई डिज़ाइन कर रहा है, कोई पिस्टल डिज़ाइन कर रहा है, क्या वो डिज़ाइन पेटेंटेबल है? See, I would say that what happens, what practice the patent Civilian person. Yeah. So what practice we follow is that if we get any application that are related to the defense sector, we first send that application to Ministry of Defense. Okay. They take a call whether it can be done by the civilian or not. So once we get your application, we would send it for the approval to the Ministry of Defense.
or the DRDO, and then what recommendation we get from there, accordingly it would be done. Thank you very much. Thanks. थैंक यू मैम फॉर द इंटरेक्टिव सेशन। मैम मेरा क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क हम पर्सनल बेसिस पे भी कर सकते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड चाहिए होता है उसके लिए? पर्सनल बेसिस पे also you can do, no problem. GSTN number and company registered not required. GSTN number. Which number? GSTN number. I cannot get you. Company registration. Company registration number is not required at all. You can file a trademark as an individual also. Do we need a prototype for design patent? No, it can be on paper also. Prototype is not mandatory, but yeah, it should be मतलब कुछ useful item होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस दिमाग में सोचा, abstract सा idea, उस पे design बना दिया, वैसी चीज़ों को design नहीं मिलता है। It should be something that is useful। जैसे आपने कोई ज्वेलरी का डिज़ाइन बनाया, तो ऐसा नहीं है कि आपको ज्वेलरी बना कर ला के देनी है, आप उसको पीस ऑफ पेपर पे ड्राइंग करके भी डिज़ाइन रजिस्टर करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। पेटेंट दो टाइप के होते हैं, एक यूटिलिटी पेटेंट, एक डिजाइन पेटेंट। तो क्या जैसा अभी आपने बताया कि डिजाइन पेटेंट अलग है, डिजाइन अलग है और पेटेंट अलग है। यूटिलिटी पेटेंट इज स्टिल नॉट कंसिडर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया। इट हैज नो लीगल बैकिंग एज ऑफ नाउ। इन फ्यूचर इट माइट बी देयर। वी हैव बाहर के कंट्रीज में यूटिलिटी पेटेंट है, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं यूटिलिटी पेटेंट से। यूटिलिटी पेटेंट वो होता है जिसमें इन्वेंटिव स्टेप वाला क्राइटेरिया नहीं होता है, बट इंडिया में यूटिलिटी पेटेंट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफ येट। Might be in future they are recognized. Design is different, patent is different. इंडिया में यही दो चीज़ें हैं, पेटेंट है, डिज़ाइन है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। एज अ कंप्यूटर साइंस, अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन किया, तो वो क्या डिजाइन में आएगा या पेटेंट में आएगा? अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाई है, उसके लिए आपने कोई कोड लिखा होगा, एल्गोरिदम लिखा होगा, दैट एल्गोरिदम और कोड विल बिकम योर कॉपीराइट। ओके, अगर आपके सॉफ्टवेयर से आपने कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स का भी इन्वेंशन किया है, देन दैट वुड बिकम अ पेटेंट। अगर आपके फाइनल प्रोडक्ट में कोई चीज़ ऐसी है जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, जैसे लैपटॉप का डिज़ाइन है, देन ओनली इट विल बिकम अ डिज़ाइन। Otherwise, the algorithm or the code comes under the heading of copyright. If someone writes a lyrics of a song, yes, and then composes the music also, and then they themselves sing the song also and record it and do that. So, what are the types of things can be done? Whether copyright? Copyright. Okay. That's it. Okay. Copyright for all the stages. For all the stages. Yes. So lyrics will not be like a literary thing or anything like No, no. The literary works come under the heading of copyright. Okay. Copyright आप मोटा-मोटा समझे तो it is artistic work. Okay. कोड लिखना, गाना लिखना, गाना गाना, डांस परफॉर्म करना, ठीक है, मूवी बनाना, ये सारे जो आर्टिस्टिक चीज़ों के अंदर आते हैं, उसको कॉपीराइट मिलता है। Okay. Thank you. Ma'am. Okay, where is it? Hello. Ma'am. Can an individual take GI identification? No, no, no. As an individual, you cannot take the GI because GI is given to group of people who are producing that thing. और एसोसिएशन होगा, जैसे कि संबलपुर की सिल्क साड़ीज़ का एक एसोसिएशन है वीवर्स का, उनको वो GI ले सकते हैं। आप एज अ मतलब आपका कोई ग्रुप होगा जो उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करता है, रजिस्टर्ड सोसाइटी होगी, एसोसिएशन होगा, वो GI टैग ले सकते हैं। सो यू कैन गेट इन टच विद दोज पीपल एंड आप ले सकते हैं। मैम जैसे मेरठ की नान खताई है या और भी जो दूसरी डिशेज हैं, अगर जैसे जो डिशेज हैं कोई भी किसी पर्टिकुलर स्टेट की, उसकी अगर GI लेनी हो, जो आपने उड़ीसा और बंगाल का जिक्र किया था और रसगुल्ला को लेके लड़ाई उनकी हुई थी, तो उस तरह से अगर किसी डिश के लिए लेना हो GI, उस स्थिति में क्या कोई कंपनी बना के भी GI लिया जा सकता है? डिश से क्या मतलब है? जैसे सपोज दाल मखनी, जैसे बिहार और ईस्टर्न यूपी में लिट्टी चोखा, हाँ लिट्टी चोखा, राइट, राजस्थान की दाल बाटी, तो उसका GI के लिए क्या इंडिविजुअल या कंपनी के तौर पर किया जा सकता है? इंडिविजुअली नहीं किया जा सकता है, बट एसोसिएशन के थ्रू किया जा सकता है। अगर आप एसोसिएशन का फॉर्म करें या सोसाइटी का फॉर्म करें, और उसको आप डिस्टिंग्विश कर सकें, लिट्टी चोखा मुझे मेरठ में भी मिल जाएगा, ठीक है,
बट आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा कि लिट्टी चोखा जो बिहार का है और बाकी एरियाज से वो डिफरेंट कैसे है। ये एक इम्पोर्टेंट उसका ओरिजिन तो उधर से ही है। और इट्स नॉट अबाउट ओरिजिनल, इट्स अबाउट विच इज बीइंग मेड एट प्रेजेंट। हम टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। लिट्टी चोखा हो सकता है आप बेस्ट बनाते होंगे, ओके, बट आई एम नॉट, GI इज नॉट गिवन फॉर अ टेस्ट, GI इज गिवन फॉर द जोग्राफिकल लोकेशन जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। ओके, सो यू नीड टू प्रूव दैट लिट्टी चोखा जो मेरे को मेरठ में मिलेगा या दिल्ली में मिलेगा वो आपके एरिया से कैसे डिफरेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। ओके Ma'am, suppose we are working in an pharmaceutical industry and I have applied a long of hard work to make a vaccine, but under certain circumstances, the company fired me. Would I get a copyright for the vaccine which I made with my hard work? So, what is the procedure for that? I got your question। जब आप कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, वो स्टार्टिंग में ही आपसे एम्प्लॉयमेंट सर्विस के एग्रीमेंट पे साइन करा लेते हैं और बोलते हैं कि जो भी इन्वेंशन होगा दैट वुड बी फॉर दैट कंपनी, नॉट आपके इंडिविजुअल के नाम पे। एंड अगर आपको कंपनी आपके इन्वेंशन करने के बाद फायर कर सकती है तो दिस थिंग इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस। दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द कंपनी। We as an intellectual property office does not deal in these type of issues, but I know these type of issues are there and maybe you can take the help of civil justice in this. It is kind of a civil case. It is outside the scope of our office. Thank you, ma'am. Thank you everyone. Hello. Hello. For more questions you can directly contact to the Dean Faculty of Law, Dr. Vaibhav Goyal Bharti. Sir, he will communicate to the contact number of Ms. Chavi Garg ma'am and you can resolve your query. Thank you very much for raising so many queries. Ma'am, we want you to be with us here. Thank you very much ma'am for giving us valuable information regarding IPR, the processes, the guidelines, the fee and the online process through which we can file our ideas and we can get it registered, we can get the grants. And now I would like to request Honorable Vice Chancellor Sir and Honorable Pro Vice Chancellor Sir to please come on the stage and honor our today's guest with Patka and Memento. Please sir. I would like to request Dr. Nisha Rana, Assistant Professor, CRIC, to come up and please present vote of thanks for today's event. Thank you. Jai Hind to all. A very warm good afternoon to Honorable Vice Chancellor Sir, CEO Ma'am, Ms. Chavi Garg, Examiner of Patent and Design, Pro VC Sir, Registrar Sir, all principals, deans, HODs, in charge HODs, faculty members, dear students, and everyone gathered here. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this event possible. I, Dr. Nisha Rana, Assistant Professor, CRIC, on behalf of IQAC, Faculty of Law, Central Research and Incubation Center, under the aegis of Swami Vivekananda Subharati University, extend my sincere thanks to the Honorable Vice Chancellor Sir for his guidance and support for making today's events a grand success. On behalf of organizing committee, I extend a hearty vote of thanks to our chief guest, Ms. Chavi Garg, who spared time from her busy schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, knowledge, and this will surely encourage us in our future endeavors. Your knowledge and thought have enlightened our minds and have shown a new path. Thank you, ma'am. Today we have a lot of knowledge, information, which will truly help us in future also. A special mention and thanks to our respected CEO, ma'am, for being the catalyst that stimulated us to do our best. With a deep sense of appreciation, with thanks to our Pro VC sir, all dean,
directors, principals, faculty members for their untiring efforts. I would like to thank to all the respective representatives of colleges who have blessed us with their presence. Thanks to all of you. I'm grateful to the staff members of Swami Vivekananda Subharati University and the audience for coming here and for the best wishes for this event also. Last but not the least, a big thanks to each and everyone who made the event successful. With thanks to you for being with us. It has remained a pronounced pleasure for us. Thank you. Have a great day ahead. Jai Hind to all of you. जय हे